بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ وہ اپنے کمرے میں موجود آئینے کے سامنے کھڑی اپنی ڈانس پریکٹس میں مگن تھی، لیکن بنا میوزک کے ڈانس کرنے میں اسے کافی دشواری پیش آ رہی تھی۔ یوں تو اس نے اپنے موبائل فون پر گانا لگایا ہوا تھا، لیکن اس کی آواز اتنی نہ تھی کہ ناچتے ہوئے اس کے کانوں تک پہنچ پاتی۔ آخر کچھ دیر کے بعد تنگ آ کر اس نے موبائل اٹھا کر گانا بند کیا اور موبائل پٹکنے والے انداز میں ایک طرف رکھا اور آئینے کے سامنے بیٹھ گئی اور خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ بے حد حسین تھی، لیکن اس کے نصیب اس کی طرح خوبصورت نہیں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ خیالوں میں گم ہو کر ارد گرد سے بے نیاز ہو جاتے، اس سے پہلے ہی اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز سنائی دی، جو بمشکل ہی اس کو آوازیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی آواز سن کر ایک دم سے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی اور اٹھ کر بجلی کسی تیزی سے اپنی ماں کے کمرے کی جانب گئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا اور وہ مسلسل کھانسے جا رہی تھی۔ اس دوران اس کو سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی تھی۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس صورتحال میں کیا کرے۔ اپنی ماں کو بیماری کی حالت میں یوں دیکھ کر اس کی خود کی حالت بھی پتلی ہو جاتی تھی۔ بوکھلائے ہوئے انداز میں وہ جلدی سے اماں کے پاس گئی اور پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اماں کے منہ سے لگایا اور ساتھ ہی ساتھ اماں کی کمر بھی سہلانے لگی۔ اس کی ماں کو پچھلے 8 مہینے سے یہ کھانسی کے دورے پڑ رہے تھے۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ موسمی کھانسی ہے، گرمیوں میں خود ہی ختم ہو جائے گی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کھانسی کم ہونے کی بجائے مزید شدت پکڑتی جا رہی تھی، جس سے وہ بے حد پریشان ہو چکی تھی۔ اب وہ اپنی تنہا کے انتظار میں تھی کہ کب اس کو تنہا ملے اور وہ اپنی ماں کو ہسپتال لے کر جائے، کیونکہ رات دن کھانسی کر کر کے اس کی ماں کے پھیپھڑے تک دکھنے لگے تھے۔ دوسرا، اب اکثر اس کا سانس بند ہو جایا کرتا، جس کی اسے بہت پریشانی تھی۔ اس کی ماں نے 2 گھونٹ پانی پیا اور پھر سے کھانسنے لگی تھی، مگر اس مرتبہ وہ جب کھانس کر سیدھی ہوئی تو اس کے ناک سے خون بہتا اسے چیخنے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کی ماں ہوش کھوتے ایک طرف گری تھی اور وہ اپنی ماں کا چہرہ تھپ تھپاتی اسے آوازیں دے رہی تھی۔ پھر وہ باہر کی طرف بھاگی اور پڑوس والے گھر کا دروازہ ہذیانی انداز میں بجا ڈالا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور سامنے ایک 40-45 سال کا آدمی کھڑا تھا، جو اس کو سر تا پیر گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اسے اس آدمی کی ہوس بھری نظریں اندر تک گھستی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر اس کی ماں کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ کبھی اس پر تھوکنا بھی پسند نہ کرتی، مگر اس وقت اس کی ماں کی زندگی بچانے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی، اور وہ آدمی کی خباثت بھری نظروں کو نظر انداز کرتی روتے ہوئے اس کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی اور اس سے کہنے لگی کہ وہ اس کی مدد کر دے۔ اس کی ماں کو ہسپتال پہنچانا بہت ضروری ہے، نہیں تو وہ مر جائے گی۔ اس کی مجبوری سن کر اس آدمی کی آنکھوں میں چمک مزید بڑھ گئی تھی، یعنی کہ آج یہ مچھلی جال میں پھنس چکی تھی۔ وہ کتنے عرصے سے اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا، مگر یہ لڑکی تھی کہ اس کو بھاؤ ہی نہ دیتی۔ مگر اب جب وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تو کیوں وہ فائدہ نہ اٹھاتا؟ اب تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ہاتھ آئی خوبصورت چڑیا کو ہاتھوں سے نکال دیتا۔ وہ نیچے جھکا اور ایک گھٹنے کو فولڈ کیے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ ٹھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا اور بولا کہ میں تمہاری مدد کروں گا، مگر بدلے میں تمہیں میری ایک شرط ماننی ہوگی، کیونکہ تم جانتی ہو نا، اس دنیا میں کوئی بھی کسی کے لیے فری میں کچھ نہیں کرتا۔ تم میری شرط مان لو، میں تمہاری ماں کو ہسپتال لے کر جاؤں گا۔ وہ اپنی بات کہہ کر اس کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ جواب میں اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس سے کہا کہ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بس تم میری مدد کرو۔ تم جو کہو گے میں وہ کروں گی، لیکن ابھی پلیز جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ اس آدمی کے ہونٹوں پر ایک شاطر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے جلدی سے گاڑی نکالی، اس کی ماں کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور جلدی سے ہسپتال کی راہ لی۔ گاڑی کے مرر میں وہ بار بار اس کو دیکھ رہا تھا، جو اپنی ماں کا سر گود میں رکھے زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ اس آدمی نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک زبردست موڑ کاٹا تھا
जिस से गाड़ी को एक जोरदार झटका लगा और वो डर से उछलकर उसे डरता देखकर सामने फ्रंट सीट पर विराजमान उस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी और उसकी आंखों की चमक भी मजीद तेज हो गई थी। उस वक्त अगर कोई उसके दिमाग में चलने वाले इरादे भांप लेता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि उसके इरादे थे ही इस कदर खौफनाक जो ना जाने अब उस लड़की को किस कदर मुसीबत में डालने वाले थे। रेशमा एक खूबसूरत और हसीन लड़की थी। उसकी उम्र 22 साल थी। उस पर जवानी खूब चढ़कर आई थी। वो एक पुरानी बस्ती में अपनी माँ के साथ एक किराए के घर में रहती थी। उसका बाप उसकी माँ को छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया था। उसे आज भी वो मंजर अच्छे से याद था कि जब एक दिन उसकी माँ को रात 8 बजे कोई औरत अपने साथ लेकर गई थी। उसकी माँ सारी रात घर वापस न आई थी। सारी रात उसका बाप कमरे में टहलता रहा था और सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। वो दोनों बाप बेटी पूरी रात उसका इंतज़ार करते रहे, मगर उसकी माँ पूरी रात घर नहीं आई थी। उसकी वापसी सुबह के वक्त हुई थी। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली थी। उसने देखा कि उसका बाप वॉशरूम में था। वो बिस्तर से उठी और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने देखा तो उसकी माँ इंतहाई परेशान कुन हालत में खड़ी थी। अपनी माँ की हालत देखकर वो शशदर रह गई। दरवाज़ा खोलने पर उसकी माँ घर में दाखिल हुई और बेड पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके साथ ही साथ अपने जिस्म को नोचने लगी। उसने देखा कि उसकी माँ का चेहरा जख्मी था और आस्तीनें फटी हुई थी। उसका बाप वॉशरूम से निकला तो उसकी माँ उसके बाप के पैरों में गिर गई और माफ़ी मांगने लगी। उसकी माँ बार बार कह रही थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, वो नापाक हो गई है, वो उसे माफ़ कर दे। उसके अब्बा ने उसकी अम्मा को उठाया और फिर उससे कहा, रक्षंदा, मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था, मैं तुम्हें इसीलिए रोकता था कि इस रास्ते से वापस आ जाओ, क्योंकि मैं जानता था कि इस रास्ते पर सिवाय ज़िल्लत के और कुछ नहीं है। लेकिन तुमने मेरी बात की नफ़ी की। मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बातों से इनकार किया था और मुझे झूठा करार दिया था। मैं इसी दिन के लिए डरता था रक्षंदा, इसी चीज़ का मुझे खौफ था। लेकिन तुम्हारे यकीन दिलाने पर मैंने यकीन कर लिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने मुझे यकीन दिलाया था कि तुम गलाजत से बहुत दूर रहोगी और मैंने तुम पर यकीन भी कर लिया था। तुम्हारे भरोसे पर मैंने भरोसा किया था और तुमने मुझे ये सिला दिया। तुम जानती भी हो कि आज की रात मेरी किस तरह कांटों पर गुजरी है। तुम मुझे अपना पता बता कर नहीं गए थे। काश कि तुम मुझे अपना पता बता कर जाती तो मैं तुम्हें बचा लेता। आज की रात मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं थी। तुम जानती हो, पूरी रात घर से बाहर तुम थी और यहाँ मेरा दिल कांप रहा था। मुझे लगता था कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, लेकिन तुम्हारी तरफ से मैं मुतमईन था कि तुम खैरियत से होगी। तुम कौन सा पहली मर्तबा घर से बाहर रही थी, मगर शादी के बाद ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि इस तरह मेरा दिल बुरी तरह वसवसों का शिकार हो रहा था। लेकिन मैंने 1 मिनट भी अपना दिल तुम्हारी तरफ से मैला नहीं किया था। लेकिन तुमने ये अपने साथ क्या कर लिया रक्षंदा? क्यों किया तुमने ऐसा? मेरा नहीं तो कम से कम अपनी बेटी का ही ख्याल कर लेती। जब इसको पता चलेगा कि इसकी माँ पूरी रात किसी गैर मर्द के बिस्तर पर गुजार कर आई है, तो बताओ इस पर क्या असर पड़ेगा। तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तुमने बहुत बुरा किया है रक्षंदा, बहुत बुरा। अब की ये रात सारी ज़िंदगी हमारे दरमियान आ गई है। मैं चाह कर भी इसको अपने जहन से नहीं निकाल पाऊंगा, मगर मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं तुम्हारे सामने इस बात का कभी जिक्र नहीं करूँगा। कहते साथ ही उसके अब्बा ने बैठकर अपना सर उसकी माँ के कंधे पर रखना चाहा। जब उसकी माँ एकदम बदक कर उसके अब्बा से दूर हुई थी और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और उसके बाप से कहने लगी कि मेरे करीब मत आना, मुझसे दूर रहो, मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। काश कि उस वक्त मैं तुम्हारी बात मान लेती तो आज इस हाल में न होती। अब तो मुझे तुमसे नज़रें मिलाने की भी हिम्मत नहीं है। अगर तुम मेरे आस पास या मेरे सामने रहे तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी। प्लीज़ हमें छोड़कर चले जाओ, मुझसे दूर चले जाओ, इतना दूर कि दोबारा कभी मेरा और तुम्हारा सामना ना हो। उसका बाप शशतर सी नज़रों से उसकी माँ की तरफ देख रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी उसे ये क्या कह रहे थे। वो कैसे अपनी ही बीवी से दूर रह सकता था। उसके बाप ने उसकी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की,
लेकिन उसकी माँ कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसकी माँ ने उसके अब्बा को कहा कि तुमने अगर ज़िंदगी में मुझसे ज़रा भी मोहब्बत की है तो तुम्हें उस मोहब्बत का वास्ता है। तुम्हें हमारी बेटी की कसम है, हमसे दूर चले जाओ। मेरे साथ जो हो चुका, मैं उससे बहुत बदनाम हो चुकी हूँ, लेकिन मैं अपनी वजह से तुम्हारी इज्जत पर कोई हर्फ नहीं आने दे सकती। अगर तुम मेरे साथ रहे तो लोग तुम्हें सर उठाकर जीने नहीं देंगे, और ना ही मैं अब तुम्हारे काबिल हूँ। अगर तुम नहीं गए तो मैं अपनी जान ले लूँगी। उसका बाप उसकी माँ की दी हुई धमकियों और कस्मों से इतना मजबूर हो गया था कि उसके पास सिवाय घर छोड़ने के और कोई रास्ता नहीं बचा था। बीवी की ज़िंदगी की खातिर उसका बाप अपनी बेटी और बीवी को अकेला ही छोड़कर चला गया। उसके बाप का इरादा था कि कुछ दिन तक जब उसकी बीवी का दुख कम होगा तो वो खुद ही उसको वापस बुला लेगी। अब उसे शिद्दत से उस दिन का इंतज़ार था, मगर उसका ये इंतज़ार ही रहा, क्योंकि रेशमा की माँ उसी दिन शोहर के घर जाने के बाद रात के पिछले पहर उसको अपने साथ लिए घर से निकल आई थी, और जाते जाते वो माचिस की तीली जलाकर उस घर में फेंकना ना भूली थी। जो ही उसने तीली जलाकर फेंकी, उस वक्त घर में आग लग गई थी, और फिर उसकी नज़रों के सामने ही सारा घर आग की लपेट में आ गया था। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि रक्षंदा नाचने वाली का इस दुनिया से नामो निशान ख़त्म हो चुका है। वो अपनी बेटी पर अपने माजी की परछाई भी पड़ने नहीं देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कभी दुनिया को पता चले कि वो एक नाचने वाले की बेटी है। वो अपनी बेटी को उस अंधेरी दुनिया से बहुत दूर ले जाना चाहती थी। इसीलिए रातों रात वो घर व मोहल्ला छोड़ा, और फिर अगले दिन शहर भी छोड़ दिया और एक गुमनाम बस्ती में आकर किराए पर रहने लगी। उसे पता था कि अगर वो वहाँ पर रही तो उसका शोहर भी उसके आसपास आ सकता है, और वो दिल के हाथों मजबूर होकर अपनी कसम वापस ले लेगी। इसीलिए उसने अपने पीछे आने का कोई निशान नहीं छोड़ा। सबको यही लगता था कि घर में आग लगने से घर के तीनों अफराद जलकर मर गए हैं। उस नए मोहल्ले में रेशमा की माँ अपनी जान पहचान बदल कर रहने लगी। वो लोगों के घरों में काम करके खुद का और रेशमा का खर्चा उठाती थी। वक्त गुजरता गया और रेशमा 16 साल की हो गई। उसकी माँ उससे अपना माजी छुपाती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि रेशमा अपनी माँ के माजी की हर लफ्ज़ से न सिर्फ वाकिफ़ थी, बल्कि बचपन से ही उसको डांस करना अच्छा लगता था। वो एक कामयाब डांसर बनना चाहती थी। वो जानती थी कि उसकी माँ के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसमें किसी हद तक उसकी माँ की भी गलती थी, जो उस रात उसकी माँ को तवाइफ समझ बैठा था और उसकी माँ के साथ गलत किया था। लेकिन रेशमा ने सोच लिया था कि वो एक कामयाब डांसर बनेगी और अपनी एक पहचान बनाएगी। डांसर बनना उसका ख्वाब था। वो शुरू से ही अपनी माँ को देख देख कर डांस करना सीख गई थी। उसके बाद उसने स्कूल में कई मर्तबा गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा भी लिया था। अपनी माँ को वो इस चीज़ की भिनक भी नहीं लगने देना चाहती थी, इसलिए माँ से छुपकर उसके इल्म में लाए बगैर वो ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेती थी। 10वीं में उसके स्कूल में पार्टी रखी गई थी, जिसमें डांस कंपटीशन भी था। ये पार्टी बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज की गई थी। उस पार्टी में मीडिया भी शामिल था। रेशमा ने पहले अपना नाम डांस कंपटीशन में लिखवाया था, मगर जब उसको पता चला कि उसमें टीवी कैमरे वाले भी आ रहे हैं तो उसने अपनी टीचर से मुआवजत कर ली थी, जिस पर उसकी टीचर ने कहा कि ये मौका उसको दोबारा नहीं मिलेगा। ये मुकाबले इसीलिए करवाए जा रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर छुपे टैलेंट को बाहर लाया जा सके और उस बच्चे की काबिलियत को दुनिया के सामने लाया जा सके। तुम डांसर बनना चाहती हो, उसके लिए तुम्हारे पास इससे बेहतरीन और कोई मौका नहीं हो सकता। घबराना छोड़ दो और दुनिया को अपना टैलेंट दिखा दो। उसकी टीचर ने उसे बहुत मोटिवेट किया था, जिसके बाद वो राज़ी हो गए थे। पहले जब वो उस गुमनाम बस्ती में आई थी तो उस वक्त उस बस्ती में नाम के कुल 10-12 घर थे, मगर अब तो घर के साथ घर जुड़ गया था और कच्ची बस्ती की शक्ल शहर ने ले ली थी। अब उस बस्ती में हर सहूलत मौजूद थी। खैर, उस दिन घर आकर रेशमा ने खूब प्रैक्टिस की थी, जिसका नतीजा ये निकला कि अगले दिन वो मुकाबला जीत चुकी थी। उसे स्कूल की बेस्ट डांसर का अवार्ड दिया गया था, जिसने रेशमा का बहुत हौसला बढ़ाया था। अवार्ड लेते वक्त उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। ये उसकी पहली बड़ी कामयाबी थी। काश कि उस रात उसकी माँ के साथ वो सब कुछ ना हुआ होता, तो आज वो अपनी खुशी को अपने माँ और बाप दोनों के साथ शेयर करते। मगर
وہ ایک رات ان کی زندگی کی سیاہ ترین رات ثابت ہوئی تھی۔ وہ اداسی سے سر جھکا گئی اور ایوارڈ لے کر سٹیج سے نیچے اتر آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا تھا اور وہ اپنے خوابوں کے قریب پہنچ گئے تھے۔ افے کے بعد اس نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا تھا، کیونکہ اب اس کی ماں اس کی پڑھائی کے خرچ اٹھانے سے قاصر تھی۔ وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی، اسی لیے ریشما نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ اب وہ ایک بینڈ کے ساتھ منسلک ہو گئی تھی۔ وہ بینڈ شادیوں وغیرہ میں میوزک سسٹم آرگنائز کرتا تھا۔ شادی میں میوزک، ڈانس، ڈھول، دھماکے کی ساری ذمہ داری اس بینڈ کی ہوتی تھی۔ وہ بینڈ ایک پاپولر بینڈ تھا۔ ان میں 2 ڈھول والے تھے، 2 گٹار والے، 4 پیانو اور اس کے ساتھ دوسرے انسٹرومنٹ دیکھتے تھے۔ 4 سنگرز تھے، جن میں 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے، اور 3 ڈانسرز تھے۔ مگر وہ لوگ چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ مزید ایک اچھی ڈانسر ہو، اسی لیے انہوں نے ریشما کو ٹی وی پر دیکھنے کے بعد اس کے کالج میں آ کر اس کو اپنے ساتھ کام کی آفر دی تھی۔ وہ لوگ اس کو معقول معاوضے کی پیشکش بھی کر رہے تھے، اسی لیے ریشما بنا دیر کیے مان گئی تھی۔ اب وہ اس بینڈ کے گروپ کے ساتھ کئی مرتبہ شادیوں پر جا چکے تھے اور وہاں جا کر اپنی ناچ سے سب کے دل جیت لیتے۔ اپنی ماں کو صرف اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ ایک اسکول میں پڑھاتی ہے اور شام میں اکیڈمی میں۔ اسکول اس نے ڈبل شفٹ بتایا تھا تاکہ اگر وہ پورا دن گھر سے باہر بھی رہے تو اس کو شک نہ ہو۔ وہ زیادہ تر دن کے فنکشنز میں ہی شریک ہوتے اور رات کو 8 بجے سے پہلے گھر آ جاتے۔ شادی کے علاوہ اب وہ منگنی، نکاح اور ڈھولکی وغیرہ پر بھی جانے لگے تھے۔ اس کو آہستہ آہستہ وہ پہچان ملتی جا رہی تھی جس کی وہ متمنی تھی۔ لوگ اسے پہچاننے لگے تھے اور خاص طور پر اسے ساتھ لانے کی فرمائش کرتے۔ وہ ایک طرف بہت خوش تھی اور اللہ کی شکر گزار ہوتی، تو دوسری طرف اسے دکھ بھی ہوتا کہ وہ اپنی ماں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر کسی روز اس کی ماں کو اس کی حقیقت پتہ چل گئی تو نہ جانے کیا ہوگا، مگر اسے یقین تھا کہ تب تک وہ اس قدر کامیاب ہو چکی ہوگی کہ اس کی ماں کو اس پر فخر ہوگا اور یقیناً وہ اس کی خطا معاف کر دے گی۔ اس دن بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے اپنے موبائل پر کسی انجانے نمبر سے کال آتے دیکھے۔ پہلے تو 2 مرتبہ اس نے اس کال کو اگنور کر دیا، مگر جب تیسری مرتبہ کال آئی تو اس نے یہ سوچ کر کال اٹھا لی کہ شاید کوئی ارجنٹ کام ہو۔ اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا اور سلام کیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے فون کان سے دور کر دیا تھا اور غور سے فون کو دیکھنے لگی تھی اور دوبارہ سے فون کان سے لگایا۔ اسے ایسی آواز آئی تھی جیسے فون کے دوسری پار تیز آندھیاں اور جکڑ چل رہے ہوں۔ ہوا کی اتنی تیز آوازیں اس کے کانوں میں سنائی تھیں کہ اس نے اپنے کانوں سے موبائل ہٹا کر دیکھا کہ اس کو کال کرنے والے اس دنیا کا باسی تھا۔ دوبارہ جب اس نے فون کان سے لگایا تو اس کے کانوں سے ایک بھاری، گمبھیر اور رعبدار مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ اس کے سلام کا پورا جواب دیا گیا تھا۔ اس کے اپنے بینڈ ممبر کے علاوہ کبھی کسی مرد سے اس نے بات نہیں کی تھی۔ ابھی مقابل کے سحر خیز انداز میں وہ کھو گئی تھی۔ اس کو اپنے کانوں میں پڑنے والی یہ آواز جانے ایک ہی پل میں کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ اس کو اپنے پورے جسم میں ایک الگ سا احساس ہوا۔ تبھی وہی آواز دوبارہ گونجی تھی، وہی دھیما اور مدھم لہجہ تھا۔ لہجے کی مضبوطی اس کے مالک کی شخصیت کا پتہ بتا رہی تھی۔ وہ شخص اس کو اپنی بہن کی شادی پر انوائٹ کر رہا تھا۔ اس نے ریشما سے کہا کہ آج سے 1 ہفتے بعد اس کی بہن کی شادی ہے، جس کے لیے ریشما کو اپنے بینڈ کے ساتھ اس کی شادی میں آنا ہے اور 4 دن اسی جگہ پر رہنا ہوگا۔ 4 دن کا سوچ کر ریشما نے سوچا کہ وہ انکار کر دے گی، لیکن جب اس آدمی نے معاوضے کی بات کی تو ریشما نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی تھی، کیونکہ اس کے بدلے میں اسے جو رقم مل رہی تھی وہ اس رقم سے اپنی ماں کا علاج اچھے سے کر سکتی تھی۔ 3 مہینے سے ان لوگوں نے گھر کا کرایہ بھی نہیں دیا تھا، اس نے وہ بھی دینا تھا۔ اس نے اس کو لوکیشن بھیجنے کے لیے کہا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کو لوکیشن موصول ہو گئی تھی۔ اس نے لوکیشن اور ایک وائس میسج جس میں اس نے تمام تر تفصیل بتا دی تھی اپنے بینڈ کے گروپ میں سینڈ کر دیا تھا، اور پھر موبائل پر سانگز لگا کر آئینے کے سامنے پریکٹس کرنے لگی تھی۔ لیکن اچانک اماں کی خراب طبیعت اسے پریشانی میں ڈال گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنی ماں کو لے کر ہسپتال پہنچ چکی تھی، جہاں اس کی ماں کو فوراً سے ایمرجنسی میں لے جایا گیا، جبکہ وہ روتے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے سامنے ہی وہ 40 سالہ آدمی کھڑا تھا۔
जो अभी तक उसे पुरस्कार मुस्कुराहट से देख रहा था। ये आदमी पिछले 4 साल से उनके घर के साथ खाली पड़े प्लाट में घर बनाकर उसमें शिफ्ट हो गया था और तब से उसने रेशमा पर बुरी नज़र रखी हुई थी। उसको पता था कि रेशमा और उसकी माँ अकेली रहती हैं। वो कई मर्तबा उनके घर में भी दाखिल हुआ था, मगर अल्लाह ने रेशमा की इज़्ज़त महफूज रखी थी। उसने कभी उस शख्स को भाव नहीं दिया था, मगर आज माँ की बीमारी की मजबूरी उसे इस हाल तक ले आई थी कि उसे उस जैसे शख्स से मदद मांगनी पड़ी थी। वो काफ़ी देर यूं ही साकत सी दीवार से लगी खड़ी रही। जब डॉक्टर को कमरे से बाहर आता देखकर एकदम से अलर्ट होकर सीधी खड़ी हुई थी और डॉक्टर की तरफ बढ़ी थी। डॉक्टर, मेरी अम्मा कैसी हैं? बड़ी बेकरारी से सवाल पूछा था। उसके कान अच्छी खबर सुनने के मुंतज़र थे, लेकिन डॉक्टर ने मायूसी से नफ़ी में गर्दन हिलाई थी और बोली, आई एम सॉरी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। उनको काफ़ी अरसे से ब्रेन ट्यूमर था जो काफ़ी हद तक फैल चुका था और फिर इलाज न होने की वजह से आज उनकी जान ले गया था। खबर थी या कोई सूर जो रेशमा के कानों में फूंका गया था। वो लड़खड़ा कर उल्टे कदमों से चलती दीवार से जा लगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। कुछ देर के बाद वो अपनी माँ की मैयत लिए घर पर मौजूद थे। आस पड़ोस में सबको खबर हो गई थी। सब लोग ही इज़हार ताज़ियत के लिए उसके घर में मौजूद थे, मगर वो तो जैसे बुत बनी बैठी थी। उसे कोई खबर ही ना थी और ना ही कोई होश था। उसके दिमाग पर माँ की मौत का बहुत असर पड़ा था। औरतें उसको रुलाने की कोशिश कर रही थी कि वो थोड़ा बहुत रो ले, मगर वो किसी भी बात का असर नहीं ले रही थी। पूरी रात वो एक ही जगह बैठी साकत नज़रों से ज़मीन को घूरती रही, मगर जब अगली सुबह उसकी माँ की मैयत को कब्रिस्तान ले जाने के लिए उठाया गया तो वो चीख चीख कर रो दी थी। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि सबके लिए उसको संभालना मुश्किल हो गया था। वो गश खाकर गिर पड़ी थी। औरतें उसे उठाकर उसके कमरे में छोड़ आई थी। एक नामहसूस लम्स महसूस करते ही वो बेहोशी में ही बुरी तरह से बेचैन हुई थी और अगले ही पल उसकी आंखें पूरी की पूरी खुल गई थी। वो हरासा नज़रों से खुद पर झुके उस 40 साला आदमी को देखने लगी जो उसके बेड पर उसके इंतहाई करीब बैठा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। उसने चीखना चाहा, मगर उससे पहले ही उस आदमी ने उसके चेहरे पर अपना हाथ मजबूती से जमा दिया था, जिससे उसकी चीख हलक में ही दब कर रह गई थी। वो आदमी फंकारते हुए बोला था, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कल मुझसे कहा था कि तुम मेरी हर बात मानोगी, इसीलिए तुम्हें इसी शर्त पर अस्पताल लेकर गया था। अब मेरी पहली शर्त यही है कि तुम चुपचाप अपना आप मुझे सौंप दो। ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी और तुम्हारी माँ की असलियत अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ एक तवाइफ थी और आगे तुम भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही हो। उसकी ज़ुबानी ये बात सुनकर रेशमा शशतर रह गई थी। उनके माजी से तो कोई भी वाकिफ़ नहीं था, फिर ये कौन था जो उसके और उसकी माँ के माजी के हर एक पन्ने से वाकिफ़ था। उसे यूं शशतर सा खुद को देखते पाकर उस आदमी के होंठों पर कमीनगी सी मुस्कुराहट आई थी। शायद वो उसके जहन में मचलता सवाल पड़ गया था। तभी बोला, भाई मेरे तो वारे न्यारे हैं। एक रात इसी तरह मुझे तुम्हारी माँ का दिलकश हुस्न मुयस्सर हुआ था और देखो आज उसी रात की तरह मैं तुम्हारे हुस्न से अपनी रात रंगीन करूँगा। कहते साथ ही उस आदमी ने एक मकरूह कहका लगाया था और फिर गलत इरादे के साथ उसके ऊपर झुकने ही लगा था कि जब उसके कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई और फिर 2 सेकंड बाद फिर आ गई, फिर चंद सेकंड रहने के बाद दोबारा चली गई, फिर आई, फिर आई, फिर चली गई। अब उसके कमरे की लाइट तेज़ी से जलने बुझने लगी थी। उसके साथ ही उन दोनों के कानों में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो एकदम से उसके ऊपर से पीछे हटा था, जिससे वो फुर्ती से बेड से उतरी एक तरफ कोने में जा खड़ी हुई। कदमों की आवाज़ तेज़ी से इधर उधर जाती सुनाई दे रही थी। वो दोनों हैरान परेशान उस जानिब देख रहे थे जहाँ से आवाज़ आ रही थी, मगर उन दोनों को कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। अचानक से रेशमा की नज़र दीवार पर पड़ी तो उसके मुंह से चीख निकल गई। सामने दीवार पर किसी का बहुत बड़ा साया पड़ता दिखाई दे रहा था। रेशमा बेहद खौफज़दा हुई थी, मगर इसके साथ ही वो आदमी भी बेयकीनी से दीवार की तरफ देखने लगा।
देखते ही देखते कमरे में चारों तरफ धुआं सा भरने लगा, और वो भी काला स्याह धुआं जो आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को अपनी लपेट में ले रहा था। रेशमा हैरत ज़दा सी अपनी जगह पर खड़ी थी, मगर जब अचानक उसके जिस्म को एक झटका सा लगा था और इसके साथ ही उसके मुंह से एक कराह निकली थी। उसको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई गैर मावराई मखलूक उसके जिस्म में सरायत कर गई हो। उसके साथ ही रेशमा का खुद पर से कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। उस आदमी ने जैसे ही रेशमा की तरफ देखा तो उठकर बाहर की तरफ भागने लगा। वो ज़माना शनास आदमी था। रेशमा की सुर्ख लहू छलकाती आंखें देखकर वो सारा मामला समझ चुका था, इसीलिए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, मगर इससे पहले ही रेशमा ने उसे पीछे से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर अगले ही पल ज़ोर से दीवार में दे मारा था। उसने फिर से उस शख्स को उठाया और फिर दूसरी जगह पर टक दिया। फिर तो जैसे रेशमा पागल सी हो गई थी, या शायद उस पर खून सवार हो गया था। उसने उस शख्स को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। उसको आदमरी हालत में फर्श पर छोड़कर खुद वो बेड पर जा बैठी थी, जहाँ उसके जिस्म ने एक मर्तबा फिर से झटका खाया था। वो चौंक कर होश में आई थी और वहशत ज़दा होकर सामने का मंजर देखने लगी, जहाँ वो आदमी आदमरी हालत में पड़ा हुआ था। पूरे कमरे के फर्श पर और दीवारों पर खून के ही धब्बे थे। वो एकदम बिदकते हुए अपनी जगह से उठे थे। कुछ देर पहले जब उसके जिस्म को झटका लगा था, तब उसको ऐसा महसूस हुआ था जैसे किसी ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया हो। ना जाने वो कौन सी मखलूक थी जो रेशमा के जिस्म पर कब्जा करके उस घटिया आदमी को इस हाल में पहुंचा चुकी थी। रेशमा ने कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाई थी। उसके कानों में तभी एक मधुर से सीटी की आवाज़ गूंजी, जिसने रेशमा को हैरान करने के साथ साथ बौखला दिया था। वो उस सीटी की आवाज़ को बखूबी सुन सकते थे। जब उसकी माँ उसको लेकर उस घर में शिफ्ट हुई थी, तो तब अक्सर ही रेशमा को अपने कानों में उस सीटी की आवाज़ सुनाई देती, या अपने कमरे और घर में एक परिंदा बैठा दिखाई देता। वो परिंदा आम परिंदों से मुख्तलिफ होता। ज़्यादातर वो रेशमा के आस पास ही घूमता रहता। रेशमा ने कई मर्तबा अपनी माँ को बताया कि उसे सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, मगर रेशमा की माँ ने उसको रेशमा का वहम समझा था। रेशमा को जिस वक्त वो सीटी की आवाज़ सुनाई देती, वो ऐन उसी वक्त अपनी माँ को बताती, मगर हैरत की बात यह थी कि उसकी माँ को सीटी की आवाज़ सुनाई नहीं देती और ना ही उसकी माँ को वो परिंदा दिखाई देता, भले ही उस वक्त वो रेशमा के कंधे पर ही क्यों ना बैठा होता। रेशमा आधी आधी रात को उठकर चीखने लगती। उसे ऐसे महसूस होता जैसे उसके आस पास उसके साथ कोई है। अगर वो अकेली खेल रही होती, तब भी कोई चुपके से आकर रेशमा के साथ उसके खेल में शरीक हो जाया करता, जिससे रेशमा बेहद खौफज़दा हो जाया करती। रेशमा की माँ ने जब मुसलसल बेटी को खौफज़दा रहते देखा, तो एक दिन उसने रेशमा को अपने पास बुलाया और एक तावीज़ रेशमा के गले में डाल दिया। रेशमा को कहा कि वो ये तावीज़ हमेशा पहने रखेगी तो उसको कभी डर नहीं लगेगा, और फिर ऐसा ही हुआ था। वो तावीज़ पहनते ही वो परिंदा और सीटी की आवाज़ दोनों गायब हो गए। रेशमा हमा वक्त वो तावीज़ पहने रखती, मगर अभी कुछ देर पहले उस आदमी ने इंतहाई बुरी तरह से उस तावीज़ को खींचकर रेशमा के गले से निकाल दिया था। तो क्या अब वो परिंदा और वो सीटी की धुन वाली मखलूक वापस आ गई थी? इस बात का ख्याल आते ही रेशमा के पूरे जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। वो अपनी जगह सुकड़ सिमट कर बैठ गई और हरासा नज़रों से चारों तरफ देखने लगी, मगर उसे कोई भी नज़र नहीं आया। कमरे में बिखरा पड़ा खून उसे वहशत में डाल रहा था। इसीलिए तभी वो अपनी जगह से उठी और उस आदमी के पास जा खड़ी हुई, जो वो मुश्किल सांसें ले रहा था। रेशमा ने उसे बाजू से पकड़ा और नफरत से उसे देखते हुए उसको घसीट कर बाहर की तरफ ले जाने लगी। फिर उसको उसके घर के दरवाजे के आगे डाल गई। अब उसका इरादा कमरे और घर से वो सारा नापाक खून साफ करना था। उसका इरादा था कि उस शख्स को अभी और उसी वक्त जान से मार दे, मगर वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देना चाहती थी। उसी की वजह से उसके माँ बाप एक दूसरे से दूर हुए थे। उसी की वजह से ही वो अपने बाप की शक्ल तक देखने के लिए तरस गई थी। यही वो शख्स था जिसकी वजह से उसे अपना हंसता भसता घर छोड़कर उन किराए के घरों में धक्के खाने पड़े थे। वक्त गुजर गया था, लेकिन वो कुछ भूली नहीं थी। उसे अपनी माँ की एक एक अजियत याद थी और वो उस शख्स से सारे हिसाब किताब चुकता करना चाहती थी।
اپنی ماں کی ہر ایک اذیت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ وہ اسے یوں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دینا چاہتی۔ کچن میں جا کر اس نے پوچھا لیا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی تاکہ خون صاف کر سکے، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی اسے ایک مرتبہ پھر سے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کے سامنے پورے کا پورا کمرہ صاف ستھرا جگمگا رہا تھا، نہ ہی کمرے کی دیواریں اور نہ ہی فرش پر کوئی نشان تھا۔ اس کے کمرے میں خون کا ایک دھبا تک نہیں تھا۔ وہ ششتر سے نظروں سے اپنے کمرے کو دیکھ رہے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس گھر میں اکیلی نہیں تھے۔ اس نے پوچھا وغیرہ دوبارہ سے جا کر باہر رکھ دیا اور کمرے میں آ کر ڈرتے ڈرتے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کمرے کی صفائی اس طرح کی گئی تھی کہ اگر ریشما نے وہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو اسے یقین ہی نہیں آتا کہ یہاں اس کے کمرے میں خون ریز لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کیے کروٹ بدلی تھی۔ وہ چاہ کر بھی سو نہیں پا رہے تھے۔ ایک انجانا ڈر اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ سوئی تو کہیں اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے اپنی حفاظت کی دعائیں مانگ رہے تھے جب اسے اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی یا چیختی چلاتی، اس سے پہلے ہی اس کی پلکیں نیند کے بوجھ سے ایک دم بھاری ہونے لگی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی، جبکہ پاس بیٹھا وجود کافی دیر تک اس کے سر میں اپنی انگلیاں چلا کر اسے سکون پہنچانے کی کوشش کرتا رہا۔ اور پھر اچانک کچھ یاد آنے پر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا اور ایک دم سے اٹھ کر اس کے پاس سے باہر چلا گیا تھا۔ باہر جاتے ہی اس نے اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ اس وقت وہ خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ کاش کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہوتے، کاش وہ اس قدر مجبور نہ ہوتا۔ بے بسی سے سوچتے وہ ایک طرف لانج میں لگے صوفے پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں موند لی تھی۔ صبح جب ریشما کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا موبائل بج بج کر پاگل ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو اس کے بینڈ کے گروپ ممبرز کی کالز آ رہی تھی۔ اس نے کال پک کر کے فون کان سے لگایا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس کے گھر آنا چاہ رہے ہیں، جس پر ریشما نے انہیں کھلے دل سے آنے کی اجازت دی تھی۔ کال کٹ ہونے کے بعد ریشما نے وقت دیکھا، صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے بے اختیار اپنی ماں کی یاد آئی۔ اس کی ماں اسے 7 بجے کے بعد ہرگز بھی سونے نہیں دیتی تھی۔ کام ہو یا نہ ہو، وہ پورے 7 بجے خود بھی اٹھ جاتی اور ریشما کو بھی جگا دیا کرتی۔ ریشما بہت اداس تھی۔ اس کا اٹھنے کا دل تو نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اٹھ گئی تھی۔ ابھی اس کی ماں کو مرے پہلا دن تھا۔ اس کے گھر کوئی نہ کوئی مہمان آتے ہوں گے، اس لیے اس نے جلدی سے فریش ہو کر گھر کی صفائی کی تھی اور پھر لانچ میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اپنے بینڈ والے ساتھیوں کا انتظار کرنے لگی۔ ناشتہ کرنے کا اس کا کوئی دل نہیں تھا۔ اس نے ماں کے مرنے کے بعد سے اب تک ایک نوالہ بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد محلے کی خواتین اس کے گھر آنا شروع ہو گئی۔ انہی میں سے کسی نے روٹی بنا کر لائی تھی جو اس خاتون نے زبردستی ریشما کو کھلائی تھی۔ ابھی ان خواتین کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اس کے بینڈ کے ساتھی اس کے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ آج پہلی مرتبہ اس کے گھر آئے تھے۔ سارے مل کر لانچ میں بیٹھے ہی تھے۔ اس سے اظہار تعزیت کے بعد انہوں نے ریشما سے کل کے بارے میں پوچھنا تھا۔ کل ان لوگوں کی اس جگہ روانگی تھی جہاں سے انہیں کال آئی تھی۔ ریشما اب اتنی دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ پہلے وہ اپنی ماں کے علاج کے لیے جانا چاہتی تھی، مگر اب اس کی ماں ہی نہیں رہی تھی، تو پھر جانے کا کیا فائدہ تھا؟ مگر عین اسی وقت مالک مکان نے آ کر کرائے کے لیے شور ڈال دیا اور ساتھ ہی ساتھ ریشما کو گھر خالی کرنے کا بھی کہہ دیا۔ اس کے بینڈ ممبر نے ریشما سے کہا کہ اس کو ساتھ چلنا چاہیے۔ وہ بھی اسی کی طرح مجبور تھے۔ ان میں سے کسی کا بھی بیک گراؤنڈ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ وہ ریشما کے اس مالک مکان کو کرایہ کر کے دے دیتے۔ مجبوراً ریشما ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ خیر، اگلے دن سب نے اپنا اپنا 3-4 دن کا سامان پیک کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں نے ایک ویگن بک کروائی تھی۔ ویگن والے کو جب انہوں نے لوکیشن بتائی تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا، جیسے انہوں نے اسے دنیا کی نہیں بلکہ چاند کی لوکیشن دے دی ہو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ وہاں تو غیر آباد علاقہ ہے، آپ لوگ اس غیر آباد علاقے میں اس وقت کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر ان سب نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔
लड़कों ने फ़ौरन से गूगल पर लोकेशन डाली थी, मगर गूगल भी उस जगह को गैराबाद बता रहा था। अब सबको हकीकी मानों में परेशानी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? कोई उनके साथ कोई गेम तो नहीं कर रहा था? इस सोच के आते ही रेशमा ने उन लोगों के कहने पर उस नंबर पर कॉल की थी जो पहले ही बल पर रिसीव कर ली गई थी। उन लोगों के कहने के मुताबिक रेशमा उस शख्स से सवाल पूछती गई थी। कुछ ही देर में उस शख्स ने रेशमा को मुतमईन कर दिया था कि उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। मुतमईन होने पर वो लोग अपने अगले सफ़र पर रवाना होने लगे। वो बूढ़ा शख्स जो वैगन ड्राइवर था, उसने जाने से इनकार कर दिया और बार बार उनको भी रोक रहा था कि वहाँ ना जाएं। मगर वो 8 लोग, जिनमें रेशमा भी थी, वो बूढ़े की बात पर कान ना धरते हुए सफ़र पर रवाना हो चुके थे। उन्होंने एक दूसरी वैगन ले ली। उनकी बस्ती से तकरीबन 180 किलोमीटर दूर उनकी मंजिल थी। 8 घंटे के तवील सफ़र के बाद वो रात के तकरीबन 12:30 बजे वहाँ पर पहुँच चुके थे। दूर से ही उन लोगों को कुछ भी नज़र नहीं आया था, मगर जैसे जैसे वो मंजिल के करीब होते गए उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वहाँ चारों तरफ जर्द रोशनी फैली थी और उनके इर्द गिर्द बुलंदो बाला आलीशान इमारतें महलों का पता दे रही थी। उनको ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी बादशाह की रियासत में आ गए हों। खैर, अपनी हैरत को काबू करते वो लोग अंदर दाखिल हुए थे, जहाँ बेसब्री से उनका इंतज़ार किया जा रहा था। रेशमा समेत उन सबका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उन पर बाकायदा फूलों की बारिश की गई थी, जिस पर वो सब हैरानगी के साथ साथ परेशान भी हुए थे, क्योंकि उन्हें कोई भी ऐसा नज़र नहीं आया था जो उन पर फूल फेंक रहा हो। ना जाने फिर ये फूलों की बरसात कहाँ से हो रही थी। खैर, अभी वो लोग कुछ कदम आगे ही चले थे जब एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। वो सारे घबराए हुए पीछे पलटे थे जब उन्होंने देखा कि एक लड़की बर्क रफ्तारी से भागते हुए और चीखते हुए उनकी तरफ आ रही थी। वो आते साथ ही ज़ोर से रेशमा के गले लग गई। फिर उसके सामने खड़ी होकर कहने लगी कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि उसके भाई ने उससे किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। उस लड़की ने बताया कि उसने रेशमा को एक शादी पर देखा था। उसे रेशमा की डांस इतनी पसंद आई थी कि वो उसी वक्त रेशमा की दीवानी हो गई थी। तभी उसने सोच लिया था कि वो अपनी शादी पर रेशमा को ज़रूर बुलाएगी, वो भी 4 दिन पहले। तो आज उसके भाई ने उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी थी। वो लड़की उन्हें अपने साथ लिए एक बड़े से हाल में आ गई थी, जहाँ महफिल के लिए सजावट की गई थी। उन लोगों ने अपना अपना सामान सेट किया और महफिल का आगाज़ कर दिया। अब रेशमा के नाच की बारी आ गई थी। रेशमा ने देखा कि उससे पहले ही सारे मर्द महफिल से उठकर चले गए थे। अब महफिल में सिर्फ ख़वातीन ही रह गई थी। बैंड वाले लड़कों के सामने भी बड़ा सा सुर्ख रंग का पर्दा न जाने कहाँ से नमूदार हो गया था। रेशमा ने उस दिन खुलकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी। उसकी डांस के इख्तिताम पर पूरा हाल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा था। हर तरफ रेशमा के नाम के नारे लग रहे थे। उसने पहली ही रात में सबके दिल जीत लिए थे। उसके बाद वो लोग 4 दिन तक वहाँ रहे। हर रोज़ के फंक्शन के इख्तिताम पर रेशमा को कोई ना कोई ख़ास तोहफ़ा दिया जाता, जो कि वाकई बहुत कीमती होता। सब कुछ ठीक गुजर रहा था। तीसरे रोज़ मेहंदी की रात थी। उस रात ना जाने रेशमा के बैंड मेंबर ने क्या देखा कि वो लोग रातों रात अपना सामान पैक किए वहाँ से निकल आए थे। बस्ती से बाहर निकलकर उन लोगों की जान में जान आई थी। रेशमा अपने बैंड मेंबर को अपने साथ न पाकर बहुत परेशान हुई। उसको बताया गया कि वो लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ से गए थे। रेशमा ने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, मगर वहाँ नेटवर्क ही नहीं था। रेशमा भी अब यहाँ रुकना नहीं चाहती थी, मगर उस छोटी लड़की की चाहत देखकर उसे रुकना पड़ा जो दुल्हन थी। उसे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। बारात में कुछ अजीब अजीब तरह के लोग आ रहे थे, जिनके चेहरे भी यहाँ की रोशनी की तरह जर्द पड़े हुए थे। उसको अपने आसपास मुसलसल किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। वो बस दुआ कर रही थी कि कब ये फंक्शन ख़त्म हो और कब वो घर पहुँचे। बारात के फंक्शन में नाचने के बाद जब वो स्टेज से नीचे उतरने लगी तो ऐन उसी वक्त उसे स्टेज पर 2 हस्तियाँ आती हुई दिखाई दी, जिनमें से एक को देखते ही रेशमा सकते में चली गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। सामने सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, हाथ में लाठी और तस्बीह पकड़े,
सर पर टोपी पहने रेशमा की तरफ आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि रेशमा का सगा बाप था, जिसको वो आज 12 साल बाद देख रहे थे। जब उसको यकीन आ गया कि ये उसकी आंखों का धोखा नहीं है बल्कि सचमुच में उसका बाप है, तो वो दौड़ते हुए अपने बाप के सीने से जा लगी, जिस पर साथ खड़ा शख्स शहजादों किसी आन बान रखने वाला शख्स नामहसूस अंदाज में खिसक कर पीछे हुआ था। रेशमा के अब्बा काफ़ी देर तक उसको सीने से लगाए खड़े रहे। जब बारात के आने का शोर उठा तो वो अपने बाप के सीने से अलग होकर खड़ी हुई थी और नज़रें सामने की तरफ जमाती थी ताकि बारात आते हुए देख सके। मगर ये क्या, बारात तो रास्ते पर चलकर आने के बजाय आसमान से उतरती हुई चली आ रही थी और बारातियों के चेहरे देखकर तो वो बेहोश होते होते बची। सब लोग उसके बाप को सलाम कर रहे थे, साथ ही साथ उस खुश शक्ल नौजवान को भी। रेशमा हैरानगी से सारा मंजर देख रही थी। निकाह शुरू करने से पहले उस खुश शक्ल मर्द ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सब लोगों पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। उसकी आवाज़ थी ही इतनी खूबसूरत। फिर उसकी तिलावत के ज़ेरे साया ही रेशमा के बाप ने उसकी बहन का निकाह पढ़वाया था और फिर उसकी रुखसती कर दी गई थी। रेशमा का बाप हक दक से खड़ी रेशमा को अपने साथ लिए वहाँ से निकल आया था, जबकि रेशमा सारी सच्चाई जानना चाहती थी। रेशमा के बाप ने उसे बताया कि वो तबलीग पर एक दूसरे शहर गया था, जहाँ उसे ये नौजवान इंतहाई बुरी हालत में मिला। वो घर वालों से खो गया था, इसलिए रेशमा का बाप उसे अपने साथ ले गया, फिर उसे पाला पोसा। उस बच्चे ने रेशमा के बाप से ही कुरान पाक हिफ्स किया था। जब एक दिन रेशमा के बाप को पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़ादा था, जो रेशमा के बाप के एहसान के बदले हमेशा के लिए उसका गुलाम हो गया था। रेशमा के बाप को यही खबर मिली थी कि रेशमा और उसकी माँ दोनों जलकर मर गई हैं, मगर जब उसने रेशमा को टीवी पर देखा तो वो उसे पहचान गया। उसे अफसोस हुआ था कि उसकी बेटी भी माँ के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। वो वापस आना चाहता था, लेकिन उस वक्त वो किसी दूसरे मुल्क में था, इसलिए उसने जिनज़ादे को रेशमा और उसकी माँ की हिफाजत के लिए भेज दिया, जहाँ कर जिनज़ादा भी रेशमा को पहचान गया था, क्योंकि 10 साल की उम्र में वो इसी घर में अपने ख़ानदान के साथ रहता था। मगर उसके घर वाले इंसानों से तंग होकर किसी और जगह मुंतकिल हो गए थे और वो उनसे बिछड़ कर रह गया था। उसे रेशमा शुरू से ही पसंद थी, फिर कब उसकी पसंद मोहब्बत और इश्क में बदली उसे पता ही नहीं चला। अब वो जिनज़ादा सारे जिन्नों का इमाम था। 2 साल पहले ही अपने कबीले और ख़ानदान से मिला था। रेशमा अपने बाप की ज़ुबानी सब कुछ सुनकर शश्तर रह गई। घर आने के बाद उसने बाप के कहने पर अपना सबसे बड़ा अधूरा ख्वाब छोड़ दिया था और आलमा का कोर्स करने लगी। दूसरी तरफ वो जिनज़ादा हम्मा वक्त रेशमा के साथ रहता। रेशमा भी उसकी आमद से बखूबी वाकिफ़ होती थी, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पर मजबूर थे। दोनों जानते थे कि वो कभी भी एक नहीं हो सकते। वो दोनों दरिया के उन 2 किनारों की तरह थे, जो साथ तो रहते थे मगर कभी एक नहीं हो सकते थे। उनका इश्क हमेशा लाहासिल ही रहा था, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे थे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।